In this video, we are going to see greatest common divisor, that is GCD, or highest common factor SCF. As I explained earlier, both these terms they are same. Okay? या उसको GCD भी बोलते हैं SCF बोलते हैं, बट जनरली SCF बोला जाता है. ओके, GCD अब कोई यूज नहीं करता है. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF. ओके, अब है क्या ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? दैट वी विल सी द इंफॉर्मेशन. We are familiar with the SCF and LCM of positive integers. Okay, 6th standard में हमने सीखा है how to find out SCF and LCM. Okay, then let us learn something more about them. The SCF or the GCD of given numbers is their greatest common divisor. Okay, or factor means highest common factor we can say, or greatest common divisor. अगर दो नंबर दिए है तो दो नंबर में से सबसे बड़ा कॉमन यानी दोनों में भी होता है ऐसा डिवाइजर. ओके, यानी दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला दोनों में भी होना चाहिए वो नंबर, और उसमें सबसे बड़ा, दैट इज कॉल्ड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. राइट, in each of the following examples write all the factors of the numbers and find the greatest common divisor. Okay, here examples are given: 28 and 42, 51, 27, 25, 15, 35. Okay, these three examples you have to solve by which method? The method which you have learned in standard 6th. First example is given 28, 42. Okay, so first we write factors of 28, then factors of 42. This only method we have learned in 6th standard. Okay, which numbers divide 28? 1, 2, 3 नहीं है, 4, then 7, then 14 and 28. These are the factors of 28. Then 42, 1, 2, 3, 6, 7, then 14, 21 and 42. These are the factors of 28 and 42. Right? Okay, now in this what are the common factors? Common factors are 1, 2, then 7, then 14. Okay, these are the common factors. Then in that highest common factor, that is only called SCF. तो सबसे बड़ा कौन सा है? 14. So therefore 14 is the SCF of 28 and 42. Alright? In this way, solve the remaining two examples. This it is explained you in 6th standard. Okay? Now 6th standards method, this we are, okay, this last year also we have learned, it is revised. Now let us learn now new method, that is prime factors method. Okay, अब ये क्या है prime factors method? It is easy to find the SCF of numbers by first factorizing all the numbers. Okay, ये 6th standard से भी बहुत सिंपल है. Okay, 6th standard की मेथड तो भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मिस्टेक हो सकती है उसमें, इसमें मिस्टेक होने के लिए चांस नहीं. फाइंड द SCF of 24 and 32 by the prime factors method. Okay, now prime factorization we have learned in the last video. 24 divided by 2 12, divided by 2 6 मिलता है, divided by 2 3 मिलता है. Okay, so उसके 24 के फैक्टर्स मिले, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 32 के फैक्टर्स by prime factorization method we got 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Okay, now what is the SCF? The common factor 2 occurs thrice, therefore SCF. Okay, now what are the once again I will write here, what are the factors of 24? 2 2 2 into 3. Right? Then what are the factors of 32? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Okay,
नाउ जो 6 स्टैंडर्ड में सीखा है वही करना है. व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? 2 2 2, बस इतने ही कॉमन आते हैं. सो देयरफॉर कॉमन क्या है? 2 into 2 into 2 is equal to 2 2s are 4 2s are 8. 8 is the SCF of 24 and 32. है ना सिंपल मेथड. One more short example is there. Find the SCF of 195, 312, 546. Okay. 195 के फैक्टर्स, 312 के फैक्टर्स और 546 के फैक्टर्स. ओके. इसमें कॉमन क्या है? 3 and 13. देखो 3 13, 3 13 and 3 and 13. Okay. These are the common factors in all three. Okay. So SCF is 3 multiplied by 13, that is 39. 39 is the SCF. Okay, one more example is given. Find the SCF of 10, 15 and 12. ये सारे एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरली सिर्फ सुना है बस हो गया. फैक्टर्स ऑफ 10, 2 multiplied by 5. फैक्टर्स ऑफ 15, 3 multiplied by 5. फैक्टर्स ऑफ 12, 2 into 2 into 3. ओके. इसमें कोई कॉमन मिलता है क्या? तीनों में भी होना चाहिए, तीनों में भी. 2, इसमें 2 नहीं है, गया कैंसिल. 3 नहीं है, 5 दोनों में है, तीसरे में नहीं है, यानी तीनों में एक भी कॉमन नहीं है. सो नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज कॉमन डिवाइजर. ओके. तो तीनों में कौन सा कॉमन है? 1. ओके. सो हेंस SCF इज 1. Next example, one more short example is there. Find the SCF of 60, 12 and 36. 60 के फैक्टर्स है 2 into 2 into 3 into 5. 12 के फैक्टर्स है 2 into 2 into 3. 36 के फैक्टर्स है. ओके. कॉमन क्या मिलता है? 2 2 2, 2 2 2, 3 3 3. बस इतना ही कॉमन मिलता है, बाकी कुछ नहीं. सो 2 2s are 4, 3s are 12 is the SCF. Now next point is given. Let us work out this example in vertical arrangement. We write all the numbers in one line and find factors. Okay. Now this same example it is solved in one more method. कौन सी मेथड है? दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड. एंड वो भी कॉमन में लिए. ऑल 3 नंबर्स आर टेकन कॉमन. ये तो सबसे सिंपल मेथड है. ओके. सिर्फ प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए. ओके. अब देखो व्हाट आर दोस 3 नंबर्स? 60, 12 एंड 36. 60, 12, 36. ओके. अब तीनों को भी डिवाइड कर सकता है. ऐसा कौन सा नंबर है? 2. 2 को अगर 60 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 30. 12 को 2 से डिवाइड किया आंसर मिला 6. 36 को 2 से डिवाइड किया आंसर मिला 18. अब ये तीनों को भी डिवाइड कर सकता है. ऐसा कौन सा नंबर है? 2. तो 2 ने अगर 30 को डिवाइड किया तो 15. 2 ने 6 को डिवाइड किया आंसर मिला 3. 18 को 2 ने डिवाइड किया तो आंसर मिला 9. अब तीनों को भी डिवाइड कर सकता है. ऐसा कौन सा नंबर है? इट इज 3. आंसर इधर मिलेगा 5, इधर 1, इधर 3. ओके. इनका सोचना नहीं, ये जाने दो. ओके. हमें क्या चाहिए? ओनली दिस. सो ये जो लेफ्ट साइड में जो नंबर मिलते हैं बस वही लेने हैं. देखो इधर 2 multiplied by 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 2 multiplied by 3, आंसर 12. यहां पर भी 12 मिला है, ये भी 12 है ना. ये भी सिंपल मेथड. तीनों नंबर को एक साथ. पर क्या करना है कि जो नंबर वट एवर नंबर यू विल टेक दैट शुड डिवाइड ऑल द 3 नंबर. लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए. हम पहले छोटे प्राइम नंबर से शुरुआत कर देंगे, यानी छोटे नंबर से, यानी पहले 2 से डिवाइड करो, 3 से, अगर नहीं हुआ तो 5, देन 7, 11, ऐसे ये जो प्राइम नंबर से. ओके. लेकिन पहले छोटे नंबर से शुरुआत करनी है. ओके. ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या सीखने के मिलता है? नाउ आई नो if one of the given numbers is a divisor of all the others then it is the SCF of the given number. ओके. जो भी नंबर दिया है अगर किसी का एक डिवाइजर होता है, वो सारे बाकी इसमें कॉमन मिलता है, बाकी नंबर को भी डिवाइड करता है, तो वो सबका क्या होता है? SCF.
Then if no prime number is a common divisor of all the given number, then 1 is their SCF because it is the only common divisor. Okay? अगर जितने भी नंबर्स दिए हैं, अगर उनमें अगर कॉमन प्राइम नंबर मिलता नहीं है तो उनका SCF क्या होता है? 1, क्योंकि 1 तो सब में होता है. ओके. समथिंग मोर. 2 is the SCF of any two consecutive even numbers and 1 is the SCF of any two consecutive odd numbers. Verify the rule by taking many different examples. Okay, ये प्रैक्टिस करना है आप लोगों को. This is for self study. Okay. Then next one more method is there. Okay, SCF find out करने के लिए और एक मेथड है, that is the division method. Okay. एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द SCF ऑफ 144 एंड 252. ओके, ये भी बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल, सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए और कुछ नहीं. अब देखो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 252. तो 252 अंदर लिया, 144 बाहर. ओके, जैसे डिवीजन का साइन है वैसे. ओके, 144 में अगर 250 को डिवाइड करना है तो 1 जा 144, रिमाइंडर मिला 108. ओके, 108 को अब डिवाइजर बनाओ. और ये कौन से नंबर से डिवाइड किया? 144 ना, इसको अंदर ले लो. ओके, ये नंबर इधर आता है. ओके, अब इस नंबर ने इसको डिवाइड करना है तो 108 1 जा 108, रिमाइंडर मिलेगा 36. ये 108 यहां से घूमकर वापस इधर आएगा. ओके, जिस नंबर ने डिवाइड किया है ना वो वापस इधर डिविडेंड बन के आता है. 36 से डिवाइड करना है 108 को, तो 36 3 जा 108, रिमाइंडर 0. यह डिवीजन खत्म हो गया. लास्ट में किसने डिवाइड किया है? लास्ट में जो डिवाइजर था वो होता है SCF. किसका? इन दोनों का. ओके, है ना सिंपल मेथड. Okay, here rules are given. Just go through the rules. Divide the bigger number by smaller one. Divide the previous divisor by the remainder in this division. ये पूरे प्रोसीजर में मैंने ये सारे रूल्स एक्सप्लेन किए. ओके, ऐसे ही एक एग्जांपल दिया है. Reduce 209 upon 247 into its simplest form. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी अब क्या करना है हम लोग. सपोज एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज 1000 अपॉन 5000. ओके, इसको क्या करना है तो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो पहले मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूं, दोनों को भी 100 से डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा 10 अपॉन 50. फिर से मैं दोनों को 10 से डिवाइड करता हूं, आंसर मिलेगा 1 अपॉन 5. ये मिला reduce form, right? लेकिन ये ऐसा reduce form, for getting this type of reduce form one more method is there. Okay, अब क्या मेथड है? this division method, SCF. Okay, what is that method? Okay, now let us see. 209 and 247 इनका simplest form निकालना है, नहीं तो reduce form निकालना है. Okay, तो उनका SCF निकालो. Okay, ये सब पूरा डिवीजन करने के बाद SCF मिला 19. What SCF we got? 19. Okay. अब ये 19 से दोनों नंबर को डिवाइड करो 19 से, क्योंकि ये SCF है, दोनों को ही डिवाइड करता है. तो आंसर मिला 11 अपॉन 13. ओके, एंड दिस 11 अपॉन 13 इज द reduced form or simplest form of this fraction. Right? Now we go to practice set number 12. Okay, in this how many? Two questions are there. First, find the SCF. Okay, मेथड जो भी आप लोगों को फॉलो करनी है. एंड दूसरा फाइंड द SCF बाय डिवीजन मेथड. पहले कौन सी मेथड है? फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एंड सेकंड वन इज डिवीजन मेथड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने एग्जांपल्स हैं? 10. सेकंड क्वेश्चन में 3 एग्जांपल्स. प्रैक्टिस सेट 12. क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एग्जांपल इज गिवन 25 and 40. Okay, 25. Okay, I will use simplest method.
ये क्लियर हो गया सबको? 25 को 5 से डिवाइड किया, फिर उसको 5 से डिवाइड किया। अब ये 40 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन किस से डिवाइड कर सकते हैं? 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Okay. So therefore 25 is equal to 5 multiplied by 5 and 40 is equal to 2 into 2 into 2 into 5. कॉमन में क्या मिलेगा? ओनली 5. Okay, therefore SCF is equal to 5. I hope it is clear now. Second example is 5632. 56 को डिवाइड करो 2, 28. ओके, 32 को डिवाइड करो, इससे पहले टेक्स्ट बुक में हमने सॉल्व किया है। राइट, देन फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू सो देयरफॉर एचसीएफ क्या है? कॉमन में क्या आता है? 2, 2, 2, यानी 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 8 is the SCF. Right? We go to third example. Third example is given 40, 60, 75. 40, 60 and 75. ओके, अब इसको वो कॉमन मेथड यूज करते हैं। 3 नंबर है ना, कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से तो दोनों को कर सकते हैं, इसको नहीं। 3 से इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं। देन डायरेक्टली 5. तो 5 how many is 40? 8 जा। 5 how many is 60? 12 जा। 5 how many is 15 जा। अब कोई नंबर है कि तीनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं है। सो देयरफॉर SCF इज इक्वल टू 5. इस साइड में जो नंबर है वो SCF. देन एग्जांपल नंबर 4 इज 16, 27. 16 and 27. ओके, ये दोनों को भी ये मेथड फॉलो कर सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 नंबर है तो भी हो। ओके, 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। 3 से नहीं। 4 नहीं। 5 नहीं। तो सेपरेट करके देखते हैं। ओके, 2, 8, 2, 4, 2, 27 को अगर डिवाइड किया तो 3, 9 जा। ओके, सो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3. कॉमन में क्या मिलता है? कॉमन में कुछ नहीं है। कॉमन में कुछ नहीं है, उसका मतलब SCF इज 1. SCF इज 1. Then example number 5. It is 18, 32, 48. अब तीनों को भी 2 से डिवाइड होता है। 9, 16, 24. अब तीनों को कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 2 से नहीं, तीनों को नहीं होता। 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, होता ही नहीं है। सो देयरफॉर SCF इज इक्वल टू 2. Then example number 6. 105 and 154. ओके, डिवाइड करो। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करो 35, 5 से डिवाइड करो 7, उसको 7 से डिवाइड करो। 154 को 2 से डिवाइड करो 77, 7 से डिवाइड किया तो 11, 11 से डिवाइड किया तो 1.
Okay, so therefore 105 is equal to 3 multiplied by 5 multiplied by 7. 154 is equal to 2 multiplied by 7 multiplied by 11. क्या कॉमन मिलता है दोनों में? 7. So therefore SCF is equal to 7. Right? Then example number 6. Sorry, 6 over 7. It is 42, 45 and 48. ओके, कौन से नंबर से डिवाइड होता है? तीनों को अगर ठीक तरह से ऑब्जर्व करो तो 3 से डिवाइड होता है। आंसर मिलेगा 14, 15 और इसका 16। बाकी ये तीनों को डिवाइड करने वाला कोई नहीं है। सो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3। Okay, example number 8. Example number 8 is 57, 75 and 102. Okay, अब ये तीनों को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है 3। इधर आंसर मिलेगा 19, here 25 3 is 75 and here 34 3 is। अब ये तीनों को डिवाइड करने वाला एक भी नहीं है। सो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ओके, कमिंग टू एग्जांपल नंबर 9, 56 and 57. Okay, in the rule we have learned that HCF of two consecutive number, एक दूसरे के बाद आने वाले यानी उनको ही बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, उनका एचसीएफ क्या होता है? 1। नहीं तो सॉल्व करके देखो, दिस इज द रूल। जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ 1 होता है। देन एग्जांपल नंबर 10, 777, 315 and 588। तीनों को डिवाइड करने वाला छोटा नंबर इज 3। आंसर मिलेगा 259। यहां पर आंसर मिलेगा 105। डिवीजन करके देखो, मैंने करके रखा था पहले। ओके, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। और यहां मिलता है ना 196। अब ये तीनों को डिवाइड किया तो 7 ही है ऐसा नंबर वो जो डिवाइड कर सकता है। डिवीजन करने के बाद आंसर मिलेगा 37। Then 7 1s are 7, 7 5s are 35, then 7 2s are 14 and 7 8s are 56। अब तीनों को डिवाइड करने वाला एक भी नहीं है। सो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3 multiplied by 7 is equal to 21 is the HCF. Now your question number 1 is over. We will move to question number 2. Find the HCF by division method. Which method? डिवीजन मेथड। क्या फाइंड आउट करना है? HCF. फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन 275 अपॉन 525। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। ओके, तो करो डिवीजन जैसा। छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर। कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 1 ही लेना पड़ेगा। 275। आंसर क्या मिलता है? 250। अब ये 250 डिवाइड करेगा किसको? 275। 1 250, रिमाइंडर 25। ओके, अब ये 25 किसको डिवाइड करेगा? 250 को। 10 250, रिमाइंडर 0। लास्ट में किसने डिवाइड किया? 25 ने। सो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 25। है ना सिंपल मेथड। ओके, अब इस रूल में क्या है, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया है? एंड फॉर रेड्यूस द सिंपलेस्ट फॉर्म।
So therefore 275 upon 525 divided by 25 divided by 25, दोनों को भी 25 से डिवाइड करना है. ओके, आंसर मिलेगा 11/21. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, देन नंबर 2. Second example is given 76 upon 133. डिवाइड करना है, करते हैं. 1 जा 76, वो 76 का टेबल बोलना है. 76 2 जा वो कितना होता है? 76 2 जा 152 होता है. वो पॉसिबल नहीं, इसलिए हम सो इट इज टेकन 76 1 जा 76. ओके, रिमाइंडर इज 57. अब ये 57 डिवाइड किसको करेगा? 76 को. ये भी 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, रिमाइंडर मिलता है 19. अब ये 19 किसको डिवाइड करेगा? 57 को. यहां से आएगा 19 3 जा 57 0. लास्ट में किसने डिवाइड किया? 19 इज द SCF. ओके, सो देयरफॉर SCF इज इक्वल टू 19. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म. Simplest form. Okay, therefore 76 upon 133, दोनों को कौन सा नंबर से डिवाइड करना है? SCF से, मतलब 19 से, इज इक्वल टू आंसर विल गेट 4/7. Now third example is remaining. It is 161 upon 69. डिवाइड करते हैं. छोटा नंबर कौन सा है? 69, वो बाहर आएगी एंड 161 अंदर जाएगी. ओके, हमेशा डिवाइजर छोटा होता है, डिविडेंड बड़ा होता है. तो 69 को 69 1 जा 69, 69 2 जा 138, वो उससे कर सकते हैं ना, 138. ओके, डिवीजन के रूल्स. रिमाइंडर 23. अब 23 किसको डिवाइड करेगा? 69. 23 हाउ मेनी जा? 3 जा 69. 23 के टेबल में आता है 69. सो देयरफॉर SCF इज इक्वल टू, लास्ट में किसने डिवाइड किया? 23. ओके, सो नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म. तो 161 अपॉन 69, दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? फॉर फाइंडिंग आउट सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म, 23 से डिवाइड किया. 23 हाउ मेनी जा? सो 23 7 जा. 23 हाउ मेनी जा? 69. 23 3 जा 69. So 7/3 is the simplest form of the division 161 upon 69. Okay, here our practice set number 12 gets over. Okay, next with the next point, a least common multiple. Okay, and practice set 13. I will come with the new video. Okay.